Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start new topic, that is edema. Edema क्या होता है? It is abnormal and excessive accumulation of fluid in the interstitial space and serous cavities. बॉडी के अंदर 60% जो होता है बॉडी के लीन बॉडी वेट जो होता है दैट इज़ वाटर एंड 95% उसमें से इंट्रासेलुलर होता है एंड 5% इंटरस्टिशियल होता है. टाइप्स ऑफ एडिमा आपके पास लोकलाइज होता है, जनरलाइज होता है, स्पेशल होता है. लोकलाइज इंक्लूड इन्फ्लेमेटरी, लिम्फेटिक, टॉक्सिक, एलर्जिक. जनरलाइज इंक्लूड रीनल, कार्डिक एंड न्यूट्रिशनल. And specialized include pulmonary and cerebral, that will be discussed further. Some facts about the edema. Cardiac edema is always independent parts. Renal edema is all over the body. Periorbital edema is the first sign of renal disease. Pulmonary edema occurs due to left ventricular failure, and edema of brains occur due to trauma to head. Okay, let's talk about pathogenesis of edema. It occurs due to decreased plasma oncotic pressure, increased hydrostatic pressure, lymphatic obstruction, sodium retention, or inflammation. Let's discuss decreased plasma oncotic pressure first. The plasma oncotic pressure exerted by the total amount of plasma protein tend to draw the fluid into the vessel. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि मैंने यहाँ गलत लिखा, दिस नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस ऑनकोटिक प्रेशर. ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जब आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो आपके पास क्या करेंगे, फ्लूइड को ड्रॉ करेंगे और वेसल के अंदर लाएंगे. ठीक है. जब आपके पास ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा इन केस ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को काउंटरैक्ट नहीं कर सकेगी. ठीक है. ये हमारे पास होता है. कॉजेस के अंदर तरफ जाएँ हम तो इट ऑकर्स ड्यू टू प्रोटीन लूजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लिवर सिरोसिस, माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी. ठीक है. इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी इज द फोर्स दैट नॉर्मली टेंड टू ड्राइव द फ्लूइड थ्रू द कैपिलरी वॉल. कैपिलरी वॉल से बाहर निकालता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस बाय काउंटरएक्टिंग द फोर्स ऑफ प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर. ठीक है. इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द वेन्युलर एंड विल लीड टू द एडिमा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एडिमा ऑफ कार्डिक डिजीज हो गया, एस्काइड्स ऑफ लिवर डिजीज, पैसिव कंजेशन एक्सेट्रा. अच्छा, जो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है it occurs due to two causes: impaired venous return and arteriolar dilation. Impaired venous return के अंदर congestive heart failure, ascite, thrombosis, external pressure ये सब आता है. in arteriolar dilation के अंदर heart neurohormonal dysregulation ये cause होती है. ठीक है. अब हम जाते हैं थर्ड cause की तरफ, that is due to lymphatic obstruction. lymphatic obstruction यहाँ पे lymphatic show की गई हैं. lymphatics first करेंगे जा रही हैं thoracic duct की तरफ और वहाँ से लेके जाएंगे left subclavian vein की तरफ. Any obstruction in this lymphatics will be the cause of edema. Normally, the interstitial fluid in the tissue space escape by the way of lymphatics, as you can see over here, so that any obstruction to the outflow of these channels will cause a localized edema, and this edema is given a name that is called as lymphedema, as I've mentioned. For example, elephantitis, or in breast cancer, there is an orange peel of skin, or for example, while doing the radial mastectomy, once remove the axillary gland. So as a result of that, again, there can be lymphedema, or for example pressure from tumor on the abdominal thoracic duct, or let's suppose inflammation of lymphatics, occlusion of lymphatics by malignant cell, post-surgical, all of these can lead to edema. Let's talk about the fourth cause, that is sodium retention. What happened in sodium retention? That renal mechanism is activated by sudden reduction, for example in hypovolemia. As a result of that, body will try to secrete the aldosterone that will try to retain the sodium in water, and this retention of sodium in water under the influence of ADH or vasopressin will lead to edema. How? It will increase the blood volume. As a result of this, edema will occur. For example, edema of cardiac disease, ascites of liver disease, edema of renal disease. अब मैं आपको इस फ्लो चार्ट से समझाती हूँ. हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर हो गया या रीनल फेलियर हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, हेपेटिक सिंथेसिस कम हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, इस सबको एक फिगर के अंदर रिलेट किया गया. जब भी हार्ट फेलियर होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और रीनल ब्लड फ्लो कम होगी. जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगी, बॉडी को लगेगा कि रीनल ब्लड फ्लो कम है, हाइपोवॉल्यूमिक हो रही है, तो बॉडी क्या करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करेगी. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो रिटेंशन करेगा सोडियम और वाटर की. जब एक्सेस रिटेंशन होगी सोडियम और वाटर की, बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एडिमा कॉज करेगा. ठीक है.
तो आप देख सकते हैं कि इवन इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैन लीड टू एडिमा एंड इवन डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो कैन लीड टू एडिमा। माल न्यूट्रिशन है, डिक्रीज हेपेटिक सिंथेसिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कम होगा। जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कम होगा तो हमारे पास रीनल हाइपोपरफ्यूजन होगी, ठीक है। प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, अगेन हमारे पास क्या चीज़ होगा, एडिमा कॉज करने लग जाएगा, ठीक है। तो मीन्स माल न्यूट्रिशन, हार्ट फेलियर, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, रिटेंशन ऑफ सोडियम इन वाटर, रीनल फेलियर, ऑल ऑफ दीज कैन लीड टू एडिमा, ठीक है। लास्ट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। हम इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, जब भी कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज होगी टॉक्सिन्स की वजह से या उनके प्रोडक्ट्स की वजह से, फर्ज करें हिस्टामिन वगैरह हो गया, इस सब की वजह से क्या होने लग जाएगा कि कैपिलरी की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डैट हमारे पास क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है। सिस्टमिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, एनाफाइलेक्सिस भी हो सकती है, और अगर लोकलाइज एडिमा होगा फॉर एग्जांपल इंसेक्ट बाइट वगैरह की वजह से हुआ या एक्सेट्रा। तो एग्जांपल्स के अंदर आपके पास जो है एक्यूट भी आता है, क्रोनिक भी आता है एंड एंजियोजेनेसिस भी आता है, ठीक है। लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट, ठीक है। ट्रांसुडेट क्या होता है, एक्सुडेट क्या होता है। ट्रांसुडेट इज फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन एंडोथेलियल परमिएबिलिटी and exudate is edema of inflamed tissue associated with increased vascular permeability. करेक्टर ये है कि ट्रांसुडेट नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है जबकि एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है। प्रोटीन कंटेंट लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर एक्सुडेट में ज़्यादा होता है, ग्लूकोज सेम होता है जबकि एक्सुडेट में कम होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्रांसुडेट की लेस देन 1.015 होती है, एक्सुडेट की ग्रेटर देन 1.08, ये ग्रेटर देन 7.3, एक्सुडेट लेस देन 7.3, LDH लो, LDH हाई। इफ्यूजन LDH बाय डिवाइडेड बाय सीरम LDH रेशो होती है, यहाँ पे लेस देन 0.6 होती है, वहाँ पे ग्रेटर देन 0.6 होती है। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपके पास सेल्स होते हैं दे आर मेनली मेसोथेलियर एंड सेलुलर डेब्रिस, जबकि वहाँ पे जो कि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी और पेरेन्काइमल सेल्स इन्वॉल्व होंगे। एग्जांपल्स के अंदर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर आता है और एक्सुडेट के एग्जांपल के अंदर पस आता है, डेट्स ऑल।